Good morning, would be doctors. How is the Josh? Good. So, would be doctors, this is my 31st lecture of physics crash course. मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ वेव मोशन डिस्कस किया था। साथ में लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ नीट एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन हुआ उसके बारे में कुछ बात की थी, और फर्स्ट 40 डेज के लिए आपके पास एक मैंने टेस्ट का शेड्यूल भी दिया है। वुड बी डॉक्टर्स, मैंने इन सभी लेक्चर्स में आपके साथ ऑलमोस्ट 35% पेपर आपके साथ डिस्कस कर दिया है। मीन्स 35% जो नीट में 45 क्वेश्चन आने हैं उसके 35% क्वेश्चंस के मैंने आपके साथ उन क्वेश्चन के बेस जो सिनॉप्सिस हैं वो डिस्कस कर दिया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और लास्ट 20 इयर्स में इन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो अब मैंने आपके साथ वेव मोशन शुरू किया है। तो क्या बताया था कि मैंने कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हेन इन ए वेव मोशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज distance traveled by the wave. So what is, how it is written, displacement of the particle, this is why the displacement of the particle at any time t is given as, at any time t at any distance x is given as y is equal to r sin omega t plus minus kx लिखते हैं। What is the meaning of here plus minus sign? If suppose wave is traveling along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस केस में हम नेगेटिव साइन लेते हैं। इफ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उस केस में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस देन वी आर टेकिंग प्लस साइन, व्हेन इट इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। व्हाट इज हियर आर? आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा इज दैट इज 2 pi upon capital T. This is known as, this here capital T is the time period, means time taken in the formation of one complete wave. What is it? This is also known as wave factor. This is equal to 2 pi by lambda. What is lambda? Lambda is the wavelength of the wave. So omega by k is the wave velocity. ये क्या है? दिस इज नॉट पार्टिकुलर वेलोसिटी, दिस इज द वेव वेलोसिटी। पर्टिकुलर वेव की पर्टिकुलर मीडियम में दिस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। दिस ओमेगा बाय के दैट इज द वेव वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर मीडियम, इन पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर वेव दिस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स। r 2 pi, this can be written as small t by capital T minus x by lambda, or it can be written as r sin 2 pi by lambda vt minus x. Here v is the velocity of the wave. This can be written in the different forms. Very important कि this wave is said to be having the periodicity with time as well as distance. हम ये कहते हैं कि this wave is having the periodicity with time as well as distance. What is the meaning of कि this wave is having the periodicity with time as well as distance? Means कि after a distance lambda, means after a distance lambda this wave is repeating. After a time capital T this wave is repeating. एक डिस्टेंस लैम्डा और टाइम कैपिटल टी के बाद ये वेव क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। सो दिस वेव इज सेड टू बी हैविंग द periodicity with time as well as distance traveled by the wave. What is here this omega t?
omega t is the phase of the particle. This is the phase of the particle at any time t. This is the phase of the particle at your wave at any time t. ये वेव का फेज है, पार्टिकल का फेज है किसी भी टाइम t के ऊपर. और kx क्या है? That is the phase of the particle at any distance x है. This is the phase of the particle at any distance x है. तो मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल is not only the function of time, is not only the function of x, it is having the function of time as well as distance traveled by the wave. So it is both having the phase with time as well as distance. With time it is having the phase omega t, with distance it is having the phase kx. Clear? Now this omega t plus minus kx, this is called the phase of the particle at any time t at any distance x. So here we can write the part, as we know, for 2 pi phase difference, the part difference is lambda. मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बतलाया था कि कैसे 2 pi phase के बाद आपके पास टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव क्या बन जाता है, लैम्डा. तो 2 pi फेज डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा. तो किसी भी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई के लिए आपने क्या निकालना है, किसी भी पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के लिए आपने फेज डिफरेंस निकालना है. तो क्या होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा एक्स. This is the phase difference of the particle for any path difference delta x. This is phi 2 minus phi 1. Very very important चल बच्चों, lambda upon 2 pi. बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सी के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं. मीन्स फेज डिफरेंस, कोई भी आपके पास फेज डिफरेंस दिया हुआ है, उस फेज डिफरेंस के लिए आपने पाथ डिफरेंस निकालना है. तो आप क्या निकाल सकते हो, कोई भी पाथ डिफरेंस दिया हुआ है उसके लिए फेज डिफरेंस निकालना है. तो क्या रिजल्ट है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा एक्स. सिमिलरली किसी भी पाथ डिफरेंस के लिए आपके पास डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है और इस पाथ डिफरेंस के इस डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है, इसके लिए पाथ डिफरेंस निकालना है. तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज 2 पाई डेल्टा फाई इंटू 2 पाई बाय लैम्डा. तो आप किसी पाथ डिफरेंस के लिए दिस इज द this is 2 pi is the path difference, 2 pi is the phase difference for path difference lambda. और किसी भी पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई के लिए आपके पास किसी भी फेज डिफरेंस डेल्टा फाई के लिए पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा एफ. तो मीन्स दिस इज x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, फाई 2 माइनस फाई 1. क्लियर? और आपने अगर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, फेज डिफरेंस निकालना है, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. सिमिलरली आपके पास देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम लैग, पाथ डिफरेंस एंड टाइम लैग. अगर आपके पास 2 पाई फेज डिफरेंस है तो टाइम लैग कितना होगा, कैपिटल टी. अगर आपके पास डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है तो टाइम लैग क्या आ जाएगा, कैपिटल टी इंटू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई. क्लियर? अगर आपने फेज डिफरेंस और इफ यू हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस और टाइम लैग में रिलेशन लिखना है, तो आपके पास फॉर ए कैपिटल टी टाइम लैग के लिए, फॉर ए कैपिटल टी टाइम लैग द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा. फॉर डेल्टा टी टाइम लैग द पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा अपॉन डेल्टा टी इंटू lambda upon capital T into delta t. This is the path difference for any time lag delta t. So these are the very important. बस आपने एक ही बात याद रखनी है कि 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है,
टाइम लैग कैपिटल टी है। तो उसके लिए आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपके पास फेज डिफरेंस दिया हुआ है और पाथ डिफरेंस निकालना है तब निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, टाइम लैग दिया हुआ है पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, टाइम लैग दिया हुआ है फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है कि वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज हैज ए वेलोसिटी 320 मीटर पर सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स डिफरिंग इन फेज बाय 90 डिग्री। मींस अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास फेज डिफरेंस दिया हुआ है। कितना फेज डिफरेंस दिया हुआ है? 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिया हुआ है और इस फेज डिफरेंस के लिए आपने पाथ डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या रिजल्ट यूज कर रहा हूं? पाथ डिफरेंस निकालना है, डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। अब लैम्डा क्या होगा? देखो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्लियर? तो यहां से लैम्डा क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू v बाय एफ इंटू 2 पाई और डेल्टा फाई कितना दिया हुआ है? पाथ फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है? पाई बाय 2 दिया हुआ है। तो दिस बिकम्स पाथ डिफरेंस बिकम्स लैम्डा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v बाय 4f आ जाएगा। और v कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में? 320 मीटर पर सेकंड दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? दैट इज गिवन 400 हर्ट्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी आपको पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है, तो बड़े आराम से आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? नाउ अब आपके पास देखिए जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और बार बार हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिंपल y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? आर साइन ओमेगा टी माइनस टी एक्स, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज प्लस फाइव। प्लस फाइव क्या है? दैट इज द फेज ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, कि किसी भी टाइम t, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इट इज? दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल। ये जो फाई है दैट इज द फेज ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन 10 sin 2 pi small t upon 0.1 plus that is given x upon 2 plus pi by 2, and it is given कि time is here measured in second, distance is measured in centimeter or amplitude is also in centimeter. It can be asked कि what is the amplitude of this simple harmonic progressive wave, what is its time period, what is its wavelength, what is its initial wave, in which direction it is traveling, what is the wave velocity। ये सब फैक्टर आपके पास कैलकुलेट करने आ सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस माइनस 5। क्लियर? तो हियर क्या आ जाएगा? कैपिटल टी क्या होगा? 0.1 सेकेंड होगा। वेवलेंथ क्या आ जाएगी? दैट इज 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। इनिशियल फेज क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। वेव वेलोसिटी क्या आ जाएगी? लैम्डा बाय कैपिटल टी आ जाएगी, दैट इज 2 अपॉन 0.1 आ जाएगा, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो सिंपल आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है और आपके पास सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो मैं एक बार फिर यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो y है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, x क्या है? हियर दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव है, ठीक हो गया। और लैम्डा बाय t दैट इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा है, सॉरी दैट इज इक्वल टू क्या है? वेव
वेलोसिटी है, और मैंने क्या कहा है, फॉर ए गिवन वेव, फॉर ए गिवन मीडियम, दिस वेव वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहीं से इसको हम डिफरेंशिएट करके क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगी यहाँ पे, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव। आर ओमेगा इज मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, आर ओमेगा क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है, और v क्या है, वेलोसिटी एट एनी टाइम t एट डिस्टेंस x है। क्लियर, तो v इज हियर पार्टिकल वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी क्या है आपके पास, वेव वेलोसिटी इज क्या है, ओमेगा बाय k है, और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, r ओमेगा है। तो आप यहां पे ओमेगा को किससे रिप्लेस कर सकते हो, यू कैन राइट दैट इज r इंटू वेव वेलोसिटी इंटू k। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी r यहां पे क्या आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, आपके पास k बाय ओमेगा है। क्लियर, दिस इज मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाय वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसको हम नीचे ले आएंगे, दिस बिकम्स r इंटू k बन जाएगा, दिस बिकम्स r इंटू k। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा और 2 पाई r बाय लैम्डा। इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी में रिलेशन है। सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज ट्वाइस ऑफ द wave velocity, if maximum particle velocity is twice of the wave velocity, or r is its amplitude, then what is the wavelength of the wave? maximum particle velocity क्या दी हुई है आप यहाँ पे, that is twice of wave velocity है, it means that इसकी रेशियो क्या है, 2 दी हुई है आपके पास, this is 2 pi by lambda r, तो आपके पास lambda की वैल्यू क्या आ जाएगी, that is equal to pi r। अगर r is given in centimeter, तो this wavelength of the wave भी क्या आ जाएगा, in centimeter आ जाएगा। तो आपने याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू द वेव वेलोसिटी क्या है, 2 पाई r बाय लैम्डा है। यहाँ पे एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि स्लोप ऑफ द वेव, देयर इज ए वन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्लोप ऑफ द वेव एंड वेव वेलोसिटी में भी एक रिलेशन है। अगर हमने इस वेव की स्लोप निकालनी है तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इफ इट इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम इसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप ऑफ द वेव क्या आएगी, दैट इज dy by dx। dy by dx क्या है, दैट इज द स्लोप ऑफ द वेव, और ये क्या होगी, r के साइन ओमेगा t माइनस kx, दिस इज द स्लोप ऑफ द वेव। अब आपके पास यहां पे अगर हम, सॉरी दिस इज हियर नॉट साइन, दिस इज कॉस, दिस इज द स्लोप ऑफ द वेव। अगर इसको हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें और ओमेगा से डिवाइड कर दें तो आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, व्हाट इज दिस, दिस इज द वेव वेलोसिटी। ये क्या है आपके पास, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी, ओमेगा बाय के क्या है आपके पास, वेव वेलोसिटी है। तो दिस इज क्या बन जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या है आपके पास माइनस साइन भी है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव वेलोसिटी। सो स्लोप ऑफ द वेव, आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी into dy by dx. This is also very very important result for a multiple choice question. अगर आपके पास ये पूछ लिया गया जाता है कहीं पे कि वेव आपके पास वेव की स्लोप दी हो सकती है, इट कैन बी आस्क्ड कि पार्टिकल ऊपर जा, उस इंस्टेंट के ऊपर
पार्टिकल ऊपर जा रहा है या पार्टिकल नीचे जा रहा है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे सपोज कर लो कि दिस वेव इज गिवन, इस तरह से आपके पास बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपके पास एक वेव दी हुई है और इट कैन बी आस्क्ड कि ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज कर लीजिए दीज टू पॉइंट्स आर गिवन ए एंड बी। यहां पे पूछा जा सकता है आपके पास ए के ऊपर पार्टिकल क्या है, किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब देखिए पॉइंट ए पे कंसीडर करें, पॉइंट ए के ऊपर अगर हम स्लोप ऑफ द वेव देखें तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, dy by dx पॉजिटिव होगी, तो इट मींस दैट पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो इट मींस दैट आपके पास वो पार्टिकल क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक हो गया, पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो नीचे की तरफ होगी। अब पॉइंट बी के ऊपर देखें, पॉइंट बी के ऊपर स्लोप ऑफ द वेव क्या होगी, नेगेटिव होगी। dy by dx क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने से नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो उस केस में पार्टिकल क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा। तो मींस दिस इज द रिजल्ट, जिस रिजल्ट से आपको पता चल सकता है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या पार्टिकल नीचे जा रहा है। किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी वेव के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको पता लग सकता है। क्लियर? नाउ अगर आप फिर इसको एक बार वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, उस एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन आ जाएगी। तो आपके पास व्हाट इज द एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब एक आपके पास जनरल इक्वेशन है, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव क्या है, दैट इज कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, सॉरी वन, दिस इज k स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली t स्क्वायर। क्लियर? और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली t स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली x स्क्वायर। This is the general equation of a or differential form of the simple harmonic progressive wave. Simple harmonic progressive wave की क्या है, ये जनरल इक्वेशन है। बहुत अच्छा, यहाँ पे भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके पास सिंपल सी इक्वेशन दी होगी, इट इज आस्क्ड इक्वेशन ऑफ ए simple harmonic progressive wave is given as, that is curly square y upon curly t square is equal to b into curly square है, b is constant, curly square y upon curly x square. Then it is asked कि what is the velocity of the wave, wave velocity क्या होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो जनरल रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्या इसके साथ कंपेयर करोगे, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर क्या होगा, b होगा, ओमेगा बाय के क्या होगा, अंडर रूट b आ जाएगा। तो वेव वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ b होगी। तो वेव वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b। तो आपको अगर इस इक्वेशन की नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आप यू कैन डू इट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास वेव की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वेव की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, वो बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह वो सब कुछ है। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या है कि दैट इज द एनर्जी फॉलोइंग परजेनेट टाइम, परजेनेट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द वेव। अब इट इज द एनर्जी फ्लोइंग परजेनेट टाइम, परजेनेट एरिया है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ द वेव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर
F square R square rho into V. This is the intensity of the wave, or this is the energy flowing per unit area, per unit time perpendicular to the direction of the propagation of the wave. That is called intensity of wave. This result implies that this intensity of wave is depending upon its frequency, amplitude square, density of the medium. This is rho is the density of the medium, V is the velocity of the wave. For particular wave, for a particular medium, आपके पास जो इंटेंसिटी है, मोस्टली हम क्या करते हैं कि ये सभी फैक्टर्स क्या हैं, आपके पास कांस्टेंट ले लिए जाते हैं और क्या कहते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, और इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू क्या होगा, के आर स्क्वायर होगा. मोस्टली हम क्या कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. बट समटाइम्स क्या है, आपके साथ एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी कर सकता है. वो क्या चालाकी कर सकता है, आपके पास ये दी हो सकती है, इक्वेशन दी हो सकती है, कहता है इक्वेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन, y1 इज 10 sin 2 pi t minus kx, और सेकेंड इक्वेशन क्या दी हो सकती है, y2 इज इक्वल टू 20 sin pi t minus kx. These are the two equations of a simple harmonic progressive wave. So it is asked what is the ratio of the intensities of these two waves. इन दोनों waves की intensity की ratio क्या होगी. तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो मींस यहाँ पे वो मोस्टली आंसर क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दीज टू वेव्स क्या आ जाएगी, 1:4 आ जाएगी. बट नो, इस केस में आपके पास इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है. जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो आपके पास इनकी वेलोसिटीज भी डिफरेंट है. तो सिर्फ दोनों वेव एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, आर डिफरेंट है, वी डिफरेंट है, तो आपने सब कुछ लेकर इनकी क्या है, इंटेंसिटी की रेशियो कैलकुलेट करनी है. तो आप याद रखोगे कि रेशियो द इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड स्क्वायर. वो तभी है अगर आपके पास इफ दे आर हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेलोसिटी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम. अगर सपोज करो दो डिफरेंट वेव्स हैं, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, तो आपके पास इंटेंसिटीज की रेशियो आपके पास दिस विल नॉट बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू f1 स्क्वायर r1 स्क्वायर v1 डिवाइडेड बाय f2 स्क्वायर r2 स्क्वायर इनटू v2 होगा. क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So would be doctors, we have divided this wave motion in two parts. One is the क्या है, transverse wave motion है, और दूसरा आपके पास क्या है, longitudinal wave motion है. Transverse wave motion में oscillation of the particle and wave motion are perpendicular to each other है. तो उस केस में हम क्या कहते हैं, crest और troughs बनते हैं. और जो आपके पास longitudinal wave motion है वो उसमें क्या है, wave motion and vibration of the particles are parallel to each other है. और उस केस में हम क्या कहते हैं, in that case what we are saying कि compressions and rarefactions are formed. longitudinal waves में क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं मीडियम के, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर पार्टिकल मीडियम के अवे चले जाते हैं. जहां पे पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है, वहां पे डेंसिटी बढ़ जाती है. और जहां पे पार्टिकल कहते हैं कि एट दोज पॉइंट्स व्हाट वी आर सेइंग कंप्रेशंस आर फॉर्म. और कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, पार्टिकल्स मूव अवे चले जाते हैं मीडियम के, और वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, और आपके पास उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, रेरिफैक्शन आर फॉर्म. तो इसलिए क्या होता है कि व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कुछ पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और कुछ पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है. इसलिए हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को
प्रेशर वेव्स भी कॉल कर देते हैं। These longitudinal waves are also known as pressure wave। तो इस प्रेशर वेव की इक्वेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ द प्रेशर वेव इज आर के ई के cos omega t minus kx। It is an equation of a pressure wave। What is here? R is वही एम्पलीट्यूड है आपके पास, K क्या है वही वेव फैक्टर दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा है। But here what is here EK? EK is here known as here EK is the bulk modulus of elasticity। What is here EK? That is the bulk modulus of elasticity। RK EK is here known as the pressure amplitude। RK EK को हमने क्या कॉल किया है? प्रेशर एम्पलीट्यूड कॉल किया है। डायरेक्ट आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन दी होगी, सिंपल आपके पास ये पूछा जा सकता है कि आपके पास सपोज कर लो कि यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होगी, तो इट इज P is equal to written as that is 10 cos omega t minus kx। It is said it is an equation of a pressure wave। Then what is the amplitude of the pressure, or it can be asked what is the maximum value of pressure। तो 10 यूनिट क्या होगा उस केस में? It is having the maximum pressure। गुड बी डॉक्टर्स, जो वेलोसिटी है हमारे पास, अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसफर वेव लें, अगर सपोज कर लो एक ट्रांसफर वेव स्ट्रेस स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रही है, एक स्ट्रिंग है आपके पास, उसमें वहां पे एक उसके दोनों एंड्स के हैं अटैच्ड हैं किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, वहां पे ट्रांसफर वेव ट्रेवल कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव इन दैट स्ट्रेच स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ T by m। This is the velocity of transfer waves in a stress string। What is here T? T is the tension in the string, small m is the mass per unit length। Small m क्या है? Mass per unit length of that string है। और आपका means here this is a string, इस string के साथ आपके पास कोई भी weight, कोई भी mass m attached है, और string की length क्या है? L है। तो what will be here T? T क्या होगा? This is mg। T is here weight जो इसके साथ जो कि स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई d स्क्वायर बाय 4 इनटू रो भी लिख सकते हैं। व्हाट इज हियर रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ दिस वायर, d is the diameter of the wire। So velocity of transfer wave is directly proportional to the square root of tension, inversely proportional to the square root of mass per unit length or linear density of the wire। Or you can say velocity of transfer wave is directly proportional to under root of mass of the mass with which it is attached at its one end, inversely proportional to the diameter of the wire, inversely proportional to the square root of density। अगर यहीं पे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, वेलोसिटी ऑफ द दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव, वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन दिस स्ट्रेस स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y बाय रो। क्या होगी? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y बाय रो। व्हाट इज हियर y? y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर। व्हाट इज हियर y? y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर, रो इज द डेंसिटी। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव्स, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव्स 100 टाइम द वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव इन स्ट्रेस स्ट्रिंग इज 100 टाइम द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देन व्हाट इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग? Then it is asked what is the stress produced in the string। अब क्या दिया हुआ है? Velocity of transfer waves is 100 times the velocity of the longitudinal waves। What is the velocity of transfer waves? That is under root of T by m। And what is the velocity of longitudinal waves? That is under root of y by rho। What it is asked? It is asked what is the stress produced in the string, and it is also given Young's modulus of elasticity of the wire is 10⁵ Newton per meter square। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? T स्मॉल m को क्या लिख सकते हैं? This can be
written as A into rho. This is equal to 100 into y upon rho. रो कैंसिल आउट हो जाएगा, T by A पूछा गया है, T by A क्या होती है, that is the stress. This will be equal to 10 raised power 4 into y. It is given 10 raised power 5. So this will be 10 raised power 9. 10 raised power 9 Newton per meter square will be the stress produced in the string. इतनी 10 raised power 9 Newton per meter square क्या होगी, स्ट्रिंग में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी. क्लियर? Just remember what is the velocity of sound waves. Very important. Velocity of the sound waves in a medium. Velocity of the sound waves in air. First, the formula is given by for the velocity of sound waves by Newton. According to Newton, the velocity of sound waves in vacuum or free space क्या दिया उसने formula? That is equal to under root of k iso by rho. और यहां से हमने कैलकुलेट किया k iso that is equal to p. So velocity of sound waves or longitudinal waves in vacuum or free space is equal to under root of p by rho. But जो न्यूटन ने फॉर्मूला किया, न्यूटन ने ये कंसिडर किया कि when sound waves are traveling in air, isothermal process take place. बट एक्चुअली क्या है, एयर में आइसोथर्मल प्रोसेस हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास कंडीशन है प्रोसेस शुड बी स्लो एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी कंडक्टिंग. यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस क्या हो रही थी, वायलेट हो रही थी, क्योंकि जब साउंड वेव्स बन रही है और कंप्रेशन और रेडिफेक्शन बन रहे हैं, इट इज ए फास्ट प्रोसेस और साथ में एयर क्या है, इंसुलेटेड है, तो जिसके कारण दोनों ही कंडीशंस किसको फेवर कर रही हैं, both the conditions are favoring to adiabatic process. तो इसलिए न्यूटन ने जो कंसिडर किया that is wrong. अकॉर्डिंग टू न्यूटन जब यहाँ से हमने एनटीपी के ऊपर प्रेशर और रो की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ से आया भी क्या कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कम्स नियरली इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड. एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी क्या होती है, 332 मीटर पर सेकंड के करीब होती है. तो इट मींस दैट फार्मूला गिवन बाय न्यूटन इज नॉट करेक्ट. इसके कारण मैंने आपको बता दिए. तो एक्चुअली देयर इज नीड ऑफ सम करेक्शन in the formula given by Newton. That correction is made by Laplace. According to Laplace, when sound waves travel in air, adiabatic process take place. According to Laplace, velocity of the sound in air that is equal to under root of k adia by rho. What is that k adia? That is the bulk modulus of elasticity under adiabatic process. और k adia की वैल्यू क्या आ गई, गामा p आ गई. गामा p is the that is the ratio of the specific heat of gas at constant pressure to the specific heat of gas at constant volume. This is also known as adiabatic constant. Or according to this Laplace, the velocity of the sound waves in gases that is equal to क्या है, under root of gamma p by rho है. So this result implies that, और यहाँ से जब हम NTP के ऊपर गामा पी रो की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ भी कितनी गई, 332 मीटर पर सेकंड आ गई. तो यहाँ से हमें लगा, यहाँ से एक बड़ा क्लियर हो गया था फार्मूला गिवन बाय लैप्लेस इज करेक्ट. तो फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब प्रेशर चेंज होता है तो क्या होता है, जब साउंड वेव ट्रेवल करती है प्रेशर चेंज के साथ डेंसिटी भी क्या करती है, चेंज कर जाती है. तो याद रखो कि फार्मूला में देखने में लगता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर, बट एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है. वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कहीं पे साउंड वेव ट्रेवल कर रही है और वहां पे एयर का प्रेशर हमने डबल कर दिया, what is the effect on velocity of sound? तो what will say कि velocity of sound will not change. प्रेशर चेंज के साथ प्रेशर के क्या है, velocity of sound जो है independent है. And velocity of sound is inversely proportional to square root of density. Velocity of sound density के क्या है, inversely proportional है. वो कैसे, अगर एक साउंड वेव ऑक्सीजन में ट्रेवल कर रही है
और वही साउंड वेव अगर आपके पास हाइड्रोजन में ट्रेवल करेगी तो हाइड्रोजन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन विल बी 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन ऑक्सीजन। रीजन बीइंग कि आपके पास जो ऑक्सीजन की डेंसिटी है और ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स heavier than hydrogen है। Therefore, velocity of sound in hydrogen is 4 times the velocity of sound of oxygen। यहाँ पे हम रो को क्या लिख सकते हैं, m/v लिख सकते हैं, और pv को क्या लिख सकते हैं, μrt लिख सकते हैं। From here it is very clear that velocity of sound is directly proportional to the square root of temperature। Velocity of sound is directly proportional to square root of temperature। More is the temperature, more will be the velocity of sound। आपने ऑब्जर्व किया होगा गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कोई भी आवाज़ देते हैं तो वो आवाज़ बहुत दूर तक जाकर दूर तक ट्रैवल करती है, बहुत ज़्यादा गूंजती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपने याद रखना है, अगर फ्रॉम एनटीपी इफ वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है दैट इज इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट ऑफ 0.61 मीटर के साथ आपके पास velocity of sound increase कर जाएगी। For 1 degree, this is very important result। For 1 degree rise in temperature, the increase in velocity of sound is from NTP। जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है कहाँ से इंक्रीज किया है, NTP से। Increase in velocity of sound is 0.61 मीटर पर सेकेंड है। ये रिजल्ट हमारे पास आया कहाँ से, डेल्टा V/V क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा V/V इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ डेल्टा T/T। डेल्टा V/V इज हाफ डेल्टा T/T। अब डेल्टा T क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहां से इंक्रीज किया है, फ्रॉम एनटीपी से इंक्रीज किया है। एनटीपी के ऊपर ये T जो है, जितनी भी गैस इक्वेशन होती है, टेम्परेचर जो होता है वो किस में लेना होता है, हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना होता है। तो कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, 273 है। पहले एनटीपी के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड होती क्या है, दैट इज 332 मीटर पर सेकंड है। अगर आप सही सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 0.61 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वुड बी डॉक्टर्स याद रखना। Direct result for 1 degree rise in temperature from NTP, the increase in velocity of sound is 0.61 meter per second। So thank you very much, would be doctors, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है, अपना मोराल अप रखना है, कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है। तो ये सभी बातों का आपने ख्याल रखना है। सो वुड बी डॉक्टर्स, ये सारी की सारी मेरी क्लासेज जो हैं इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। सो बच्चों, अब हम प्रार्थना करेंगे कि इस संसार में जितने भी अशांति का जो माहौल बना हुआ है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। परमपिता परमेश्वर हमारे इस विश्व में सारे शांति लेकर आए, इसके लिए हम एक प्रार्थना करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।